बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਥਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ which will be LCM and HCF for this particular examination। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਟਸ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਈਟ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਡਬੈਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਕੁਆਰੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹਟ ਕੇ ਸਾਇੰਸ ਆਏਗੀ। ਐਵਰੀਡੇ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਥੋੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਰ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸਿਸ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲਿਏ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਬੇहद ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ LCM ਐਂਡ HCF ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ LCM ਐਂਡ HCF। देखो LCM का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, HCF मीनस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सब तो पहला आप गल करांगे LCM देन हाउ कैन वी से दैट। देखो जनरली मेरे को की है 12 है 16 है। LCM फाइंड करने के बेसिक 3 तरीके ने, लेकिन तरीके की जब तक गल करते हैं ग्राउंड लेवल तो क्वेश्चन किवें सॉल्व होंदा ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ डिस्कस करते हैं। LCM ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਪਵਰਤਕ। ਲਘੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲਘੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਭਾਗਫਲ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੋਏਗਾ 2 × 2 4 ਹੈ, 4 × 12 ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 × 2 × 2। ठीक है, सानू स्कूल्स ने इदा ही कराया गया कि 2 × 3 × 1 लिखांगे आप एंड अदर फैक्टर आप 16 दे लिखांगे तो वी कैन पुट हेयर 2 × 2 × 2। देखो दोस्तों इन्हां दोनों दे कॉमन फैक्टर आप इत्थे 2 लिख लिया है। दिस इज कॉमन फैक्टर आप इत्थे 2 लिख लांगे। दैन ये दोनों कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं है उन्होंने आप की करेंगे सेम एज इट इज आपको लिखना पएगा। समझ पा रहे हो ना? मैं की किया कि उन्होंने आपको लिखना पएगा। 2 दूने 4 हो गया, 4 × 12 हो गया, 12 दूना कितना हो गया 24 तो 24 दूना कितना हो गया 48। इट मीनस 48 इन्हों का की होएगा LCM होएगा। जो कॉमन फैक्टर है उन्होंने कॉमन लिख दो, जो नॉन कॉमन है उन्होंने एज इट इज लिख दो और उनका मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज ए फैक्टराइजेशन प्रोसेस। क्लीयर है। दूसरा तरीका की होंदा है कि LCM फाइंड करने का जो तरीका होंदा है इस तरीके नाल होंदा है कि 12 × 16। अगर आप देखा सब तो पहले अपन चेक करना पड़ेगा कि व्हाट आर दीज आर इवन नंबर तो डिवाइडेड बाय 2 तो शुरू करांगे तो 3 कितना हो गया 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 है। दैन 2 तो करांगे तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 है। फिर आप 2 तो करांगे 3 है तो 2 है। फिर आप 2 तो करांगे 3 है तो 1 है। देन आप 3 तो डिवाइड करांगे 1/1 है। इट मीनस है कि आप उन्होंने नंबरों को ऑब्जर्व करके डिवाइड करते चलना है तो आप डायरैक्टली डिवाइड बाई किस तो 4 तो भी कर सकते थे। बट अगर किसी LCM मैथड ना करना चाहते हैं तो रिदमली उन्होंने मैं कह सकता कि सफल सिस्टम ना करते चलो। पहला जिमें 2 है दैन 3 है, इदा करके ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 16,2 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ 2 × 2 then 2 × 2, 3। देखो अपने को की हो गया 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = कितना होंदा है 16, 16 × 3 = कितना है 48, 48 will be LCM। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 48 ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਰਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ 12 ਤੇ 16 ਨਾਲ ਭਾਗਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਾਉਣਾ ਜੋ ਕਿ ਥਰਡ ਮੈਥਡ ਹੈ। LCM ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜਰਾ LCM ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ 12 ਰੱਖਾਂਗਾ ਤਾਂ 12 ਦੇ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਮਲਟੀਪਲ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ 12 × 12 ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 2 ਨਾਲ 12 ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ठीक है, तुसी इदां भी लिख सकते हो। ठीक है, जनरली आप इसनों फैक्टराइजेशन सिस्टम भी करके लिख सकते हो, इदां भी लिख सकते हैं 12 दूना 24, 12 × 36, 12 × 4 48, 12 × 5 60, 12 × 6 72, 12 × 8 96।
12 7 84, ठीक है, 12 7 84 एंड 12 8 96, ठीक है। आखिर आप 16 का टेबल पढ़ांगे तो कितना हो जाएगा 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64 एंड 16 5 जा 80 एंड नैक्सट अपने को हो जाएगा 16 6 जा 108 दैन अपने को कितना हो जाएगा 126। हुण तुसी देखो भी कॉमन तुसी इन्हां दे विचों की फाइंड करना, आपां कॉमन नंबर आपां फाइंड करना है विच कैन बी डिवाइजिबल। दोनों सेम होण, आ दोनों सेम है नहीं है, सो ये नहीं हो सकता। ये दोनों सेम है नहीं हो सकता। व्हाट आर दीज आर सेम नहीं हो सकता। मतलब सेम का मतलब मीन से हुंदा है कि गाइस एक तो देखो कॉमन नंबर तुसी फाइंड करते हैं जिवें आपां उपरली पोजीशन च कढिया, लेकिन दोनों नंबर सेम टेबल च है कि है नहीं। देखो 12 दे विच 12 मौजूद है लेकिन 16 च नहीं है, तो इट मीनस ए नहीं हो सकता। हुण देखो 12 इत्थे मौजूद है पर 12 32 दे विच मौजूद नहीं, ए नहीं हो सकता। 12 इत्थे मौजूद है, 12 दी 36 ते 12 चों 48 है कि नहीं है। मतलब छोटा नंबर भी वड्डे नंबर दे विच मौजूद है, तो अपने कोले की होएगा कि 48 बिल्कुल करैक्ट आंसर होएगा। हुण तुसीं लिख सकदे सीगे कि 12 चों 48 ते 12 5 60 हुंदा, पर इहदे च नहीं है। 12 5 60 ते 12 6 बिल्कुल भी नहीं है। 12 7 84, 12 नीवा 108 इत्थे मौजूद है। बट इस तो पहला की है की सीगा कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल छोटे तो छोटा मल्टीपल, तो छोटे तो छोटा मल्टीपल की होएगा 48 होएगा। बिल्कुल समझ पा रहे हो ना सारे जने समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? बिल्कुल क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं सब नूं। तो सो दैट वी कैन से दैट कि साडे कोले लोवेस्ट 48 हो सकता है एंड बिगेस्ट अपने कोले 108 भी हो सकता है। सो क्लियर हो गया। चलिए सर, चलिए सारे बच्चे समझ चुके हैं। हुण देखो एलसीएम नूं तुसीं कर सकते हो ट्रिक्स नाल। ट्रिक्स नाल किवें करना? ट्रिक इज द बेस्ट रामबाण मैथड। ट्रिक इज द बेस्ट रामबाण मैथड होएगा कि तुसीं तो बेस्ट रामबाण विधि की हो सकती है कि जदों भी एलसीएम शॉर्ट मैथड ना करना होवे 12 ते 16 लिख लो। तुसीं सब तो वड्डे नंबर नूं एलसीएम समझ लो। हुण तुसीं मैनूं ये दसो भी कि 12 का 16 का टेबल 12 तक जा सकता नहीं जा सकता। तो इसनूं की करना आपां बाय द वे स्मॉलर नंबर नूं बिगेस्ट नंबर नाल डिवाइड कर लो भी 16 ना 16 तक जा सकता है, बट इस 12 ना 16 तक नहीं जा सकता। तो इट मीनस है 16 दूना 32 कर लो, इत्थे जा सकता नहीं जा सकता। तो 16 ती 48 कर लो, आ लो जी अपना आंसर हो सकता है। तो आप इदां भी कर सकते हैं। चलो एक एग्जाम्पल होर कर लेने। 6 ते 8 आप एलसीएम करना है। मैं वड्डे नंबर नूं 8 मान लिया। हुण 8 ते 6 का टेबल जा रहा नहीं है, तो 8 दूनी 16 है, 16 ते जा रहा नहीं है। तो 8 तिया कितना हो जाना तुहाडे कोले 24, 8 तिया 24 और 6 चौका 24 हो रहा है। इट मीनस 24 वाला एलसीएम आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना सारे जने? तो यह बेसिक मैथड है जिसनों आपां अप्लाई करके अपने बेहतर तो बेहतर क्वेश्चन होर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक दो एग्जाम्पल होर करते हैं। जिवें कि सपोज आपां लिखिया 24 अते इत्थे लिखिया वा मैं सपोज में 56 है। 56 है तो तुसीं 56 नूं मान लो एलसीएम है। हुण 24 का पाड़ा जा रहा नहीं जा रहा भी 24 का पाड़ा नहीं जा रहा, तो देखो फैक्टराइजेशन सिस्टम भी दसूंगा। 24 दूना 48 नहीं जा रहा। 56 दूना हुंदा 112। तो जे मैं 24 नूं अगे करांगा कि 24 दूना 48, 24 ते 72, 24 चौका 96, 24 चौका 96, 24 5 120। तो आप इसका टेबल अगे ले जा सकते हैं ना। चलो उस तो पहला टेबल तो पहला मैं थोड़ा समझा देना चाहना है कि आप इसनों इस तरीके नाल कर लीजिए। 56 और 24 है, तुसीं इसनों 2 दे टेबल ना किया। 28 दूना 56 है, 12 दूना 24 है, फिर 2 नाल करोगे 14 दूना 28 है, 6 दूनी 12 है, फिर 2 नाल करोगे 7 दूनी 14 है, 3 दूनी 6 है, फिर तुसीं 3 नाल करोगे 7 दिन 1, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो 24 इंटू 7 करोगे तो तुहाडे कोले कितना आ जाना है? मैक्सीमम टू मैक्सीमम तुहाडे कोले आ जाना है 168 है। और अगर तुसीं इस तरीके नाल इसनूं अगे कंटिन्यू करोगे तो तुहाडा आंसर डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आएगा। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन में आप करांगे किस तरीके नाल सॉल्व कर सकते हैं। 56 एंड 24 तो आप एलसीएम करांगे दा, तो एलसीएम अपने कोले कितना आ जाएगा? 168 है। 168 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 24 ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਣਾਓ ਕਿ 24 ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਅਪਰੋਚ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਫਰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਐਂਡ 56 ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 56 ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ। ਵੀ फैक्टर बनाने दे विच हैगा है कि लाइक अगर मैं कहांगा तो 14 चौकी 56 है, ठीक है, 14 चौकी 56 है। मैं कह सकदा कि 7 इंटू 8 56 है, ठीक है। तो सो दैट हुण आपां देखना कि ये फैक्टर इहदे नाल मिल रहे कि नहीं मिल रहे। तो 4 इंटू 6 है, तो मैं कहांगा कि 4 तो 8 दे विच मौजूद है परंतु 6 दे विच मौजूद नहीं है।
मेरी गल समझ रहे हो ना भी 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ 56 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 7 * 8 ਹੈ ਤਾਂ 7 * 8 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 7 * 4 * 2 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 64 ਦੇ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6 ਤਾਂ ਇੱਥੇ 4 ਦੇ 4 ਆ ਗਏ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ 6 * 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੈਕਟਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ 3 ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੋ 3 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ 56 * 3 ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ हो गया 6 * 18 1 है 5 * 15 = 16 तो 168 आंसर आ जाएगा। वापस तो समझा देना है कि अगर ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ LCM ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ LCM ਸਮਝ ਲਿਆ LCM ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 24 ਦਾ 56 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕਰ ਲਓ ਫੈਕਟਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 7 * 8 ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ 8 * 7 ਕਰ ਲਾਂਗਾ 7 * 8 ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਜਾਂ 8 * 7 ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਮੈਥਡ ਹੈ ਦੋ ਮੈਥਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 4 * 2 ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ 7 ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ 24 ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 6 * 4 ਹੋਏਗਾ 4 ਨਾਲ ਤਾਂ 4 ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਹੈ 6 ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 3 * 2 ਹੈ 2 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਕੀ ਬਚਿਆ 3 ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੋ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 56 * 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ 168 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ LCM ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਚਲਿਏ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 64 84 ਐਂਡ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਕਿ 108 ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ LCM ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 56 ਐਂਡ 84 ਐਂਡ 108 ਹੈ 108 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ 108 ਨੂੰ ਜਰਾ ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 28 ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ 21 ਲਾਈਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ 42 what we can say 42 ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 84 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ 42 ਆਏਗਾ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 5 2 ਜਾਂ 10 ਐਂਡ 4 2 ਜਾਂ 8 ਹੈ ਤਾਂ 54 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਏਗਾ then ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 14 ਆਇਆ then 21 ਆਇਆ then ਆਪਣੇ ਕੋਲ 27 ਹੈ then we have 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 7 ਆ ਗਿਆ 21 ਆ ਗਿਆ 27 ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 7 ਆ ਗਿਆ ठीक है 7 या 21 है 3 ना करांगे तो 9 आ जाना है then आप 7 ना करांगे 1 and 9 बच गया तो आप 9 ना कर लांगे so that at the end अपने को की बचा कि 2 * 2 * 2 then अपने को 3 * 7 * 9 क्लियर है ना सारा समझ आ पा रहे हुण आप करांगे तो 4 2 जा कितना हो गया 8 है 7 या 21 * 9 189 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ तो 72 है 7 बचे 64 और 7 किन्ने होंगे 71 बचे अपने को लगभग मैं 64 और 7 समथिंग क्वेश्चन अपने को मैक्सीमम तुसी 8 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करोगे 64 then 7 प्लस करोगे तो थोड़े को कितना 71 1 बचेगा 8 में 8 7 कितना 1512 ਤੁਹਾਡਾ आंसर हो जाएगा लेकिन इस ਨੂੰ शॉर्ट मेथड ना करना है तो थोड़े को की तरीका होएगा कि 56 है 84 है 108 है ਆਪਾਂ 108 ਨੂੰ की कर लेना है LCM मान लो 108 ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ 108 ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਲਓ ਜੋ ਕਾਮਨ ਹੋਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 16 8 108 ਮੇ ਵੀ 16 5 80 16 8 108 ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ 16 7 ਓਕੇ 18 8 ਜਾ ਸੋ 18 6 ਜਾ ਸੋ ਦੈਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ 12 ਨਹੀਂ ਮਾ ਠੀਕ ਹੈ 12 * 9 ਕਰ ਲਓ ਰਾਈਟ 12 * 9 ਹਾਂ ਪੜਨ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 12 * 9 ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ 12 * 7 ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ 12 ਨਾਲ 12 ਤਾਂ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ 7 ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ 7 ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੋ ਬਈ 12 ਦਾ ਤਾਂ 12 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ 12 ਤੇ ਜੋ 7 ਬਚ ਗਏ 7 ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ 7 ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 7 * 8 ਹੈ प्यारे बच्चों 7 ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ 8 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 * 3 ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ 8 ਦਾ 4 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿ 12 * 108 ਇੰਟੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਔਰ ਇੰਟੂ 2 ਹੈ ਤੁਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ 216 ਹੈ इंटू 7 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करो फटाफट 7 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आएगा क्लियर है 7 का 42 आ गया कितना बचा 4 है 7 एकम 7 ते 4 कितना हो जाना 11 बचा 1 है 7 दूनी 14 ते कितना हो जाना 15 तो आंसर कितना है 1512 है दिस इज ए फैक्टराइज सिस्टम मतलब फैक्टर सिस्टम ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ LCM ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਟਸ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਆਵਰ ਸਪੀਡ ਐਂਡ ਇਟਸ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਆਵਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਠੀਕ ਹੈ क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है सारे बच्चों ਨੂੰ चलो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ HCF ਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
HCF किस नूं कहंदे आ? HCF का मतलब होंदा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब की है, अगर मेरे को 6 ते 8 है, इसका आप की करना है HCF फाइंड करना है, तो आप की ये फैक्टर बना लांगे 2 × 10 × 1 है, दिस इज द फैक्टर ऑफ 6, दिस इज द फैक्टर ऑफ 8 मीनस करांगे तो आप 2 × 2 × 2 करांगे, सो दैट अपने को ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो आप कह सकते हैं कि 2 इज द हाईएस्ट, मतलब सब तो वड्डे तो वड्डा फैक्टर होएगा कि जिहड़ा 6 नूं अते 8 नूं दोनों नूं डिविजिबल करेगा। क्लीयर है ना, कोई दिक्कत नहीं, सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आया। पहला तरीका तो यह है। दूजा तरीका की कहता है कि जो सानू इस तरीके नाल कराया जाता है कि बेटा तुसीं इदां इदां करो, सानू स्कूलों के इदां ही कराया जाता सीगा कि 6 एक ईवन नंबर है जिहड़ा 2 ते डिविजिबल होएगा, 3 2 जा 6 है, 1 1 आया, आप 8 नूं करांगे तो अपने कोले 2 आएगा, 4 दूनी 8 है, 2 करांगे 2 आ गया, देन अपने कोले 1 है। 6 दे फैक्टर करांगे आप 2 × 3 × 1 है, 8 दे फैक्टर करांगे आप 2 × 2 × 2 है। क्लीयर है, तो अपने को दोनों चो कॉमन फैक्टर की है 2 है, तो आप कहांगे कि साडा HCF कितना हो गया, 2 हो गया। क्लीयर है इत्थों तक सारे बच्चों को। लेकिन एक होर बेहतरीन तरीका है, एक होर यूनिक मैथड है, इस यूनिक मैथड नाल आपां क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ये यूनिक मैथड की है कि जिस नाल आपां होर भी अच्छा सवाल कर सकते हैं, पूर्ण तौर पर अपने कंसैप्ट नूं पकड़ बना सकते हैं। दैट इज ए डिवीजन मैथड। व्हाट इज दैट? दैट इज डिवीजन मैथड। देखो HCF करना है ना, हमेशा थोनों मैं एडवाइस करांगा डिवीजन मैथड ना करियो। बई किद्दां करांगे गुरु जी, आप 6 नूं छोटे नंबर नूं वड्डे नंबर ते भाग करांगे, 6 × 6 चलेगा, किन्ने बच्चे साडे कोले 2 है, इस 2 दे विच आपां की रखांगे, देखो ये साडे कोले की है डिवीजर, दिस इज डिविडेंड, दिस इज क्वोशेंट। हुण आपां डिवीजर नूं चुक के इत्थे डिविडेंड बना दो, 3 2 जा 6 है, इस नूं किस नंबर ने डिविजिबल कीता है? इस नंबर नूं 2 ने डिविजिबल कीता है, ये भी याद रखना होएगा थोनों। हाँ जी, तो 2 नाल डिविजिबल हो रहा है, इट मीनस है कि आप इनू की कहांगे, दिस इज आवर HCF, तो मतलब HCF कितना होएगा साडा 2 होएगा। क्लीयर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आप गल करते हैं। अगर मैं 16 लिखांगा, मैं लिखांगा 36 एंड 56, दसो HCF की होएगा? तो या तो देखो फैक्टर बना लो, तुसीं फैक्टर बनाओगे 2 × 2 × 2, ये तो बन गए तुहाडे 16 के फैक्टर। हुण 36 दे करोगे तो 2 × 2 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। 56 दे बनाओगे तो 2 × 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा। गुरु जी देखो अपने को 2 कॉमन आ रहा है, इत्थों दूसरे च भी अपने को 2 कॉमन आ रहा है, बाकी अपने को कॉमन फैक्टर नहीं है, इट मीनस 4 इहदा की होएगा HCF होएगा। समझ गए? कोई ज़्यादा जोर लग्या अपना? बिल्कुल नहीं लग्या ना। सारिया चीज़ां बेसिक स्तर तो मैं करावांगा, चाहे आपां चैप्टर दे विच या किसी भी कंसैप्ट च कितना भी टाइम क्यों ना लगे। अगर आप इसे नूं थोड़ा जा डिवीजन मैथड ना करांगे, डिवीजन मैथड नाल वी कैन सेव आवर टाइम, आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। जिद्दां मैं 36 नूं किहदे नाल करांगा, 16 नाल करांगा। 16 नाल करांगा तो मैं चीज़ देखा कि 16 एकम 16 दूना 2 टाइम्स चला गया, 16 दूना कितना हो गया 32 है, थोड़े कोले कितना बच गया 4 है, दैन अपने कोले 16 है, तो 4 टाइम साडे कोले कैंसल हो गया। सो दैट ए 4 एक इहो जिहा नंबर है जो डिविजिबल कर रहा है। इसे 4 नूं तुसीं देख लो 56 ते डिविजिबल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 14 चौकी 56 है, तो 4 साडा डायरैक्टली आंसर आ गया विदाउट किसी एनी वेस्टिंग एनर्जी, अपने बिना किसी वेस्ट एनर्जी तो अपना जल्दी तो जल्दी क्विकली आंसर आ रहा है। सो दैट दिस इज ए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट चॉइस होएगी। क्लियर? चलो नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं आप जी। बिल्कुल क्लियर है कंसैप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हुण देखो आपां नूं इत्थे सवाल नंबर 1 एग्जाम दे विच इत्थों सिलसिला शुरू करदा मैं। सिलसिला शुरू करांगा कि अगर सानू पूछा जाता है कि A/B, पूछा जाता है कि C/D, पूछा जाता है कि अगर सानू E/F दा तुसीं की करना है, LCM करना है। याद रखना है ऑलवेज ट्रिक दस रहा मैं तुहानूं। ऑलवेज ट्रिक की होएगी, जदों सानू किसी फ्रैक्शन का LCM पूछा जाएगा तो ऊपर वाले का होएगा LCM और नीचे वाले का होएगा HCF। ऑलवेज याद रखना। जिवें कि अगर आप क्वेश्चन देख लेने हैं, मैं लिखिया 2/9, मैं लिखिया ते 3/5, मैं लिखिया थे जिवें कि 7/ कॉमनली 3 लिखिया मैं। चलो बई हुण दसो ऊपर वाले ने LCM करांगे तो मैक्सीमम कितना आ जाएगा अपने को 7 या 21 दूना कितना आ जाएगा 42। क्लियर है ना, मेरी गल समझ पा रहे हो ना बई? 3 दूनी 6 है, 6 7 42 है। 42 तो छोटा नंबर मैनू नहीं लगता कि कोई डिविजिबल होएगा। तो दूजे का अगर आप HCF फाइंड करेंगे, इन्हां सब का की कॉमन फैक्टर है कोई भी? देयर इज नो कॉमन फैक्टर। सो दैट व्हाट वी कैन से कि अपने को कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि 42/1 साडा की होएगा LCM होएगा।
ठीक है। चलो इसी तरीके नाल आपां एक क्वेश्चन होर कर लेने हैं। जिवें कि अगर मैं लिखांगा 3/4 कॉमा मैं इत्थे लिखा है 14/5 है, कॉमा मैं इत्थे लिखांगा 12 कितना है 7 है। सो गाइज आपां की करना है, जदों भी सानू पूछा जाएगा कि दसो इहदा एलसीएम कितना होएगा, तो मैं तुहानूं ट्रिक दसी कि उपर वाले दा एलसीएम करोगे, नीचे वाले दा एचसीएफ करोगे। उपर वाले एलसीएम करांगे तो आपां देखांगे कि 14 ते 12 दे विचों कॉमन फैक्टर की है 2 है, तो 2 है, तो आपां इहो जिहा की नंबर बना सकते हैं। सब तो वड्डा नंबर देखो एलसीएम बनाउणा, तो 14 नूं तुसीं एलसीएम समझ लो। 14 ते 3 दा नहीं जांदा, तो 14 नूं 28 कर लो। 28 करांगे तो 28 ते 3 दा टेबल नहीं जांदा, तो 14 ते 42 कर लो। 42 ते आपां देखांगे 3 दा जाएगा, 12 दा नहीं जा रहा, तो 14 चौकी 56 कर लो। 56 ते भी जा रहा है कि नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, तो 14 छीका 84 आ जाएगा। 14 छीका 84 ते बिल्कुल 3 दा जाएगा, तो 84 अपने को बिल्कुल राइट चॉइस होएगी। और नीचे कोई कॉमन फैक्टर नहीं, इस करके अपना आंसर की हो जाएगा 1 हो जाएगा। याद रखना जदों कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो हमेशा उहदा एचसीएफ कितना हुंदा है 1 हुंदा है। ठीक है, चलो बई नैक्सट क्वेश्चन करते हैं आपां। नैक्सट अपने को लिखांगे इत्थे सपोज जिवें हाउ कैन वी से दैट कि दूसरे तरीके दे विच आपां लिखांगे 9/3 है, जिवें मैं इत्थे 12 कितना लिखा है 7 है, जिवें मैं लिखांगा इत्थे लाइक कि मैं लिखा है 8 जिवें लिखा मैं सपोज 5 है। हुण दसो कि इन्हां दा एचसीएफ दसो, सिर्फ एक दूसरे दे इनवर्स हो जाणगे। इस स्थिति विच ट्रिक कहंदी है कि ऊपर वाले नंबर नाल एचसीएफ और नंबर नीचे वाले नाल एलसीएम। बस आ लो जी, जो चीज़ पूछी जा रही है उसको ऊपर रखांगे तो इन्हां दे विचों कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, इन्हां चों कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, इस करके इन्हां दे 1 आ जाएगा। नीचे गल करांगे तो 7 21 5 कितना 105 है। दिस इज योर आंसर है। क्लियर है, तो 1/105 बिल्कुल डायरेक्टली बिल्कुल इंश्योर दैट विल बी योर आंसर। बहुत बेहतरीन चैप्टर है, बहुत चैप्टर दे विच मजा आएगा थोनों। अज आपां फुल डिटेल दे विच सारियां एक चीज़ां सिंगल तरीके नाल समझावांगा, ताकि तुसीं किसी भी एग्जाम च बैठोगे तो थोनों कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, इस तो अलावा आप देख लें कि होर जिवें क्वेश्चन अपने को जिवें 16/5 है, मैं लिखांगा इत्थे 18/7 है, या मैं इत्थे जनरली चलो 18/7 दी 18/10 लिख लें आपां। जिवें मैं लिखांगा 24 साडे कोले 15। दसो इन्हां दा एचसीएफ कितना होएगा। ऊपर आप एचसीएफ फाइंड करांगे तो एचसीएफ अपने को इत्थे भी अपने को कितना 2 × 4 है। इत्थे आप देखांगे तो 2 × 9 है, इत्थे आप देखांगे तो 2 × 6 है, जरा 2 × 12 है। ठीक है, 3 का टेबल 16 ते नहीं जाएगा, 8 का जाएगा, परंतु 8 दूजे च नहीं। इट मीनस है कि ऊपर तो साडे कोले एचसीएफ 2 होएगा, नीचे एलसीएम होएगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 15 दूना 30 है, तो इट मीनस है 30 साडे कोले आंसर हो जाएगा। सो दैट 1 कितना हो जाएगा 15। क्लियर है ना, सबनों समझ आया? सबनों समझ आया तो प्लीज़ एक बार मैंने सारे जने दस दो कि बिल्कुल रिपोर्ट ओके है। नीचे चैट बॉक्स थोड़ी ऐप दे विच दे रखा, किसी भी बच्चे को कोई क्वारीज है, कोई डाउट है, तुसीं अपना सुझाव और अपना सजैशनस भी आ तुहाडी क्वारीज भी तुसीं सानूं दे सकते हो। ठीक है, चलिए बई नैक्सट क्वेश्चन ते आपां चलदे हां। जिस तरीके के क्वेश्चन सानूं एग्जाम च पूछे जाते हैं, हुण सानूं आपां एक काम करांगे। सब तो पहलां तुहानूं मैं करावांगा सिर्फ एलसीएम दे क्वेश्चन, फिर आपां करांगे पार्ट 2 दे विच एचसीएफ दे क्वेश्चन। एलसीएम दे क्वेश्चन किस किस तरीके नाल पूछे जाणगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एलसीएम दे क्वेश्चन नूं आपां की करदे हां, शुरू करदे हां। एलसीएम दे क्वेश्चन दे विच की पूछा जाएगा द लीस्ट नंबर विच when divided by 4, 6, 8, 12 and 16 and leaves a remainder of 2 in each case is। देखो ये कहता कि द लीस्ट नंबर, जिथे भी लीस्ट आ गया ना हमेशा याद रखो थोड़ा एलसीएम होएगा। विच वैन डिवाइडेड बाई 4, 6, 12, 16 तो उन्होंने दे रिमाइंडर कितना बचेगा 2 इन ईच केस बचेगा। देखो जी ऑप्शन नंबर पहला तुहाडे कोले है 46, ऑप्शन नंबर दूजा तुहाडे कोले 48 और ऑप्शन नंबर तीजा है 50 और ऑप्शन नंबर नैक्सट है 56। बिना पेन बिना पेपर करने का तरीका दसांगा। पहला तरीका तुसीं अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो जिवें तुहानूं एग्जाम्स दे विच कराया जाता है। दूसरा तरीका तुहानूं मैं करावांगा जिस करके कि तुसीं बहुत जल्दी क्वेश्चन नूं रिकगनाइज कर सकते हो। देखो यार सिंपल जी गल है, ये कहंदा कि कोई इहो जिहा तुसीं लिस्ट नंबर दसो जिन्हों 4 नाल 6 नाल 8 नाल ਅਤੇ 12 ਤੇ 16 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇ 2-2 ਬਚੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ कि मैं 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂ ਬਈ, माफ कर 2 मेरे को रिमाइंडर बचने चाहिए। मैं 4 नूं चुक्या 46 ते भाग किया, मैनू पता लग्या कि 11 चौका 44 2 बच गए। मैं 6 नूं चुक्या, मैं 7 छक्का 42
42 है तो 46 ਦੇ ਵਿੱਚ 42 ਦਾ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 4 ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮਿਆ ਮੈਂ 48 ਤੇ ਗਿਆ मैं 48 ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ 12 ਚੌਕਾ 48 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚਣਾ 2 ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹ ਵੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। मैं ਤੀਜੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ मैं ਦੇਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫੰਡਾ ਹੈ मैं 4 ਦਾ 50 ਤੇ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਚਿਆ 2 ਬਿਲकुल सही है। 6 ਦਾ ਭਾਗ ਕੀਤਾ 6 into 8 तो 48 है 2 मेरे को रिमाइंडर बचा बिल्कुल सही है। मैं 8 ते जावांगा तो 8 6 जा 48 बिल्कुल 2 बच गया। मैं 12 into 4 करांगा 12 into 4 इज इक्वल 48 तो कितना बचेगा 2 बचेगा। 16 into 3 16 तीया 48 एंड 16 तीया 48 दे विच 2 जोड़ांगे तो अपने कोले 50 बन जाएंगे तो इट मीनस है मेरा आंसर ए वाला हो जाना। ये तो हो गया अपना पेंडू तरीका। ਹੁਣ मैथमेटिक्स की कहता मैथमेटिक्स से कहता नोट कर लो सारे बच्चे कि अपने कोले की करना है कि आप लिखिया 4 है 6 है 8 है 12 है 16 इन्हां दा एलसीएम कर लो। 2 नाल कीता अपने कोले 2 क्योंकि 2 नाल 4 ते 2 दा भाग करांगे 2 आ गया 6 ते करांगे 3 आ गया 8 ते करांगे 4 आ गया 12 ते करांगे 6 आ गया ते 16 ते करांगे 8 आ गया। इस तो बाद 2 ते करांगे 1 है 3 है 2 है 3 है एंड 4 है। दैन आप अगेन किस ते करना 2 ते करांगे 3 है 1 है 3 है एंड 2 है। दैन आप कस ते कर सकते हैं 3 ते कर सकते हो या तुसी 2 ते भी कर सकते हो 1 1 बाई 2 है। अंत जाके आप 2 नाल कर लेंगे। देखो 2 2 जा कितना हो गया 4 4 2 जा कितना हो गया 8 और 8 3 जा कितना हो गया देखो 8 तीया 24 24 दूना कितना हो गया तुहाडे कोले 48 तो तुहाडे कोले एलसीएम कितना आएगा 48 आएगा। 48 अगर करांगे तो अपने कोले एग्जैक्टली साडा आंसर आ जाएगा। मतलब अपने कोले की बचना चाहिए रिमाइंडर कितना कितना बचना चाहिए 2। तो हमेशा इस तरीके की ट्रिक ये काम करेगी कि जो भी एलसीएम करेंगे तो जो होएगा ईच केस याद रखना कि ईच केस रिमाइंडर ईच केस जो रिमाइंडर होएगा उसमें ऐड कर दो अपना आंसर आ जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा कि अगर आप 48 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 रिमाइंडर ऐड कर देंगे तो साडे कोले कितना आ जाएगा 50 और 50 साडा आंसर आ जाएगा। अखां बंद करके तुसी कर सकते हो बिल्कुल थोनों किते भी जरूरत नहीं पएगी। मेरे वाला देसी फार्मूला अगर यूज करना है तो देसी दवाइयां बहुत ज़्यादा कारगर ने तुहाडे लई किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही अंबार ते शंबार दवाइयां हुंदियां ने इस करके थोनों बहुत मज़ा आएगा। चलो आप एक अद्धा सवाल होर करते हैं फिर आप देखांगे जरा पीपीएससी एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन आया ਸੀਗਾ कि ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦਾ ਲੀਸਟ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਵੈਨ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 12 15 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ 20 ਅਤੇ 24 12 15 20 ਅਤੇ 24 ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 54 ਦੇ ਦੇਣਾ 54 ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ कि 4 रिमाइंडर बच ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ किन्ना बच रहा सी 4 रिमाइंडर बच रहा सी। हुण ऑप्शन मेरे को किन्ना है 450 है। ऑप्शन मेरे को किन्ना है कि दूजा 454 है। ऑप्शन मेरे को किन्ना है कि 540 है। ऑप्शन मेरे को किन्ना है कि 544 है। ठीक है जी इन्नी चीज़ समझ आ रही है। चलो प्यारे बच्चों तरीका देसी 4 बचना चाहिए हर स्थिति 12 नाल डायरैक्ट डिवाइड करो 12 नाल डायरैक्ट डिवाइड करो पहला दिमाग कि 4 इंटू 3 4 इंटू 3 डिविजिबल होना चाहिए बई। अगर 3 की गल करोगे तो 4 इंटू 5 डिविजिबल 9 बन रहे इट मीनस होगा। मतलब है कि दूजा सवाल तो मैनू पहले का ऑप्शन पहले की ऑप्शन की गल आ रही है तो पहला ऑप्शन तुसी फटाफट चेक करो भी थोड़े को डिविजिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता। क्लियर है ना। चलिए 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 शाबाश। तो इट मीनस है कि पहला तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता मैं ये चीज़ सोची है भी 4 इंटू 3 है 3 है ना 3 का मैं किसी भी नंबर से 3 का भाग पूरा पूरा कराने वास्ते की दसिया सीगा भी ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ अंकां ਨੂੰ जोड़ दो तो जिन्ना जोड़ आऊगा 3 ते भाग करके देख लो। मैं देखा भी 5 ते 4 9 है बई 5 ते 4 9 है तो 9 के उपर मैं अगर भाग करांगा तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं 9 ते भाग करांगा तो 3 का पूरा पूरा चलिया गया तो मेरे को 4 रिमाइंडर नहीं बचा बल्कि इस स्थिति के कितना कितना रिमाइंडर बचना लाजमी है 4 रिमाइंडर बचना लाजमी इट मीन से आंसर हो नहीं सकता। दूजे नूं करांगे तो मेरे को यानी 5 4 9 ते चलिया गया पिछे 4 बच गया। इस स्थिति हो सकता है इस स्थिति हो सकता है। हुण आपां 15 ते चेक करते हैं 15 ते चेक करांगे तो 5 इंटू 3 का फैक्टर बना लो या 15 ते डायरैक्ट भी तुसीं कर सकते हो। अगर तुसीं करते हो तो जे 450 हुंदा तो 5 का जांदा जे 450 हुंदा तो फिर 450 ते 3 का जांदा कि नहीं जांदा बिल्कुल जांदा। तो ये भी चीज़ लागू हो सकती है। हुण आपां करते हैं 20 ते बिल्कुल लागू हो जाएगी 20 ते भी की होनी है बिल्कुल लागू हो जाएगी। हुण प्यारे बच्चों आपां की करना है अगर तुहानूं चीज़ां नहीं समझ आउंदियां कोई गल नहीं है बिल्कुल पैनिक नहीं होना किसी भी बच्चे ने पैनिक नहीं होना है। आपां की करना है कि 12 थोड़े कोले 15 ते 20 ते 54 कितना है 54 है एलसीएम करना है। मैं 54 नूं एलसीएम समझ लिया 12 का टेबल नहीं जाता मैं 54 के टुकड़े कर लेना तो मैं करांगा 9 इंटू 6 9 6 54 है 12 के मैं टुकड़े करांगा तो मैं करांगा 3 इंटू 4 है।
ਹੁਣ 3 इंटू 4 कर लो, चाहे तुसीं इसनूं 2 इंटू 6 कर लो। 6 करदे हो तो तुहाडा गुरु जी 6 नाल 6 कट्टिया गया, 2 बच गए, चुक के 2 इत्थे ठोक दो। आ लो जी, गल खत्म है। 15 ने करांगे 3 इंटू 5 है, अपने कोल 3 तो मिल जाएगा पर 5 नहीं मिलेगा, चक के 5 ठोक दो, इत्थे गल खत्म। 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं 4 इंटू 5 है, 5 भी मिल जाएगा तो 2 दूनी 4 भी मिल जाएगा, बिल्कुल ठीक है, 20 हो जाएगा। छड़ दो इनू बख्शिया। 54 की गल करते हैं तो 9 इंटू 6 बिल्कुल हो जाएगा। हुण साडे कोले कितना हो गया, यानी 5 दूनी 10 तो 9 बराबर कितना हो जाना 540। दोस्तों 540 LCM है जो ट्रिकी मैथड नाल है। हर स्थिति च 4 बचने चाहिए, हर स्थिति का केस होवे तो तुसीं की कर देना, जोड़ देना है 405 बल्कि 544 तुहाडा आंसर होएगा। प्यारे बच्चों इत्थे तुहाडे कोले की है कि इस स्थिति दे विच 454 भी बिल्कुल मूल आधार ते तुहानूं दिख रहा है, परंतु 454 दे विच कंडीशन की है कि यह लगभग लीस्ट नंबर नहीं है, लीस्ट नहीं है ना, लीस्ट नहीं है तो इट मीनस है कि आप इसनूं नहीं चूज कर सकते, आप इसनूं चूज करांगे। ठीक है, समझ आया? चलो बई, इस तो बाद है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन ते आपां चलदे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। ठीक है, कई बार पेपर दे विच सानूं इस तरीके का सवाल आएगा कि फाइंड द ग्रेटर नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर find the greatest number of 5 digits which when divided by 3, 5, 8 and 12 have 2 as रिमाइंडर। मतलब की है कि 2 का की बचना चाहिए, रिमाइंडर बचना चाहिए। हुण देखो फाइंड द ग्रेटेस्ट, ऑप्शन थोनों की दिता है, ऑप्शन पहला देता है नहीं इदा करके, मतलब कि 5 टाइम 9 देता। नैक्सट अपने को देता 9 9 9 एंड 58। इस तो बाद नैक्सट देता कि साढ़े को 999 60, और इस तो बाद नैक्सट देता उन्हें 999 62। पहला तरीका थोड़ा मैं दस देना, 4 अखरां दी सब तो वड्डी संख्या, ये 5 अखरां दी सब तो वड्डी संख्या। 5 अंकां दी सब तो वड्डी संख्या तो सानू पता है भी 4 ना ही होणगे, बल्कि 5 ना के होणगे, परंतु गल ये आ रही है कि जिहड़ा 3 नाल 5 नाल ते 8 ते 12 नाल भाग होवे, परंतु हर स्थिति दे विच 2 बचने चाहिए। बई 3 नाल भाग करांगे तो गुरु जी थोनों एक चीज़ पता लग गई होएगी भी 3 नाल अगर आपां भाग कीता तो सारे नंबर साडे की होणगे, आ लो जी आ तां पूरे पूरे कट्टे गए आ। 3 ना भाग करांगे, दूजा देख लो भी ये 3 ना ये कट्टे गए, 58 बचा, 58 बचा तो आप 19 या 57 करते हैं, साढ़े को एक बच रहा है, तो एक मीनस मैनू नहीं लगता कि साढ़े को कंसीडरेबल होएगा, मतलब पहला ऑप्शन साढ़े को कंसीडर होएगा, मैनू नहीं जापदा इस तरीके भी पॉसीबल है। ठीक है, ये भी नहीं होएगा। अगला देखांगे 3 ना है तो 3 का पढ़ा जा सकता, 20 या 60 है। आलो जी मैं अखा बंद करके आंसर करता है। यार तरीका तुसी फाइंड करो, देखो तरीका थोनों फाइंड करना पेगा, जब तक तुसी कैलकुलेशन ना नहीं खेलोगे तुसी किसी भी पोस्ट से जाना थोड़े लिए क्वाइट डिफिकल्ट होएगा। देखो मैं की कीता, मैनू पता है भी तुहानूं याद होना चाहिए भी सानू सर ने दस्सिया सीगा भी 3 ते 9 एक इहो जी संख्या है जिन्हां दा डिविजिबिलिटी रूल तुसीं चैक करना है, तो तुसीं की करना है भी उन्होंने ये चैक करो भी सारे अंकां नूं जोड़ देवांगे, बई जोड़ देवांगे तो नंबर डिविजिबल हो जाएगा। मैं की कीता, सारे 9 के है भी 9 ते तो 3 का भाग जाता है, पहले ते भी जाएगा, दूजे ते भी जाएगा, तीजे ते चौथे ते पंजवें ते जाएगा। मैं इन्हां ते देखांगे, इन्हां 3 नाए ते जाएगा तो मेरे को 19 ते 57 पिछे रिमाइंडर एक बच रहा, जो एक नहीं बचना चाहिए, बल्कि रिमाइंडर मेरे को कितना बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। आंसर नहीं होया। नैक्सट देखांगे 3 नाए ते बिल्कुल जा रहा, 60 ते नहीं, बल्कि 3 नाए ते भी जा रहा, 60 ते भी जा रहा, 20 या 60 है, तो अंत जाके मेरे को किन्नी बन गया, 3 नाए ते जाएगा, 62 के विचों देखांगे तो 20 या 60 2 बच गए, 12 5 60 2 बच गए, फिर आप 8 6 48 है। ठीक है, 8 6 48 है, अपन 8 का मतलब की है कि अखीर 3 अंकों में, मतलब 962 देखांगे, 12 8 96 पिछे 2 बच गया, तो 12 का टेबल मैं थोड़ा अगला दसना सीगा कि लास्ट डिविजिबल में चेक कर लो कि 12 5 60 2 बच गए, तो मतलब साडे कोल लॉजिक है, लेकिन मैथमेटिकल ऑपरेशन दे विच इहनूं किवें कर सकदे सीगे। देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन ये गल कहंदा सीगा कि सवाल नूं करन दा एक तरीका आ, एक लहजा है, तुसीं इत्थे लिखोगे 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। आलो जी आ हो गया गुरु जी। हुण आपां की करना है, हुण अपने कोले नंबर की अपने कोले नंबर है 3 5 8 ते 12, 3 5 8 12 ही है ना, जरा मैनू चेक कर लैण दिओ, बिल्कुल सही है। इनू करो एलसीएम,
चलिए तो आप इनू की करना है, सब तो पहले आप एलसीएम फाइंड कर लांगे। एलसीएम फाइंड करने का तरीका वही है, जनरली आप 3 तो जाएगा नहीं, 3 सेम लिख लांगे, 5 लिख लांगे, 4 लिख लांगे, 6 लिख लांगे। फिर आप की करांगे इनू 2 कर लांगे, 3 है, देन 5 है, 2 एंड 3 है। देन इनू आप की कर लांगे, 3 कर लांगे, 1 है, 5 है, 2 एंड 1 है। बाकी की कर लांगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 दूना 120 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 120 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 19,999 120 ਦਾ ਭਾਗ ਕਰੋ, ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ 12 5 60, 12 8 96, 12 8 96 960 ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ, ਇਹ 390 ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 12 3 36, क्योंकि 12 3 36 करोगे तो थोड़े कोले आंसर आएगा तो 399 आ जाना है। ये भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ कितना हो जाना है 12 3 36, ठीक है। 12 3 36 मतलब की है कि 360 है और 39 है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 39 बच रहे एंड ਦੇ ਵਿੱਚ। अगर आप सो दैट इस कंडीशन ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि आफ्टर डिवाइडिंग 19,999 by 120 we have what we have 19,000। अगर आप 39 माइनस कर देने हैं तो अपने को लगभग जाके ये बचेगा 999 एंड 60, 999 एंड 60। इतों तक सबनों क्लियर है ना, सब पिक्चर सब बच्चों को। तो मतलब ही हो गया कि अगर मैं 999 60 ते 3 का भाग करा तो पूरा चलिया जाएगा, 5 का करा तद भी चलिया जाएगा, 8 का करांगा तद भी चलिया जाएगा, तो मैं 12 का करांगा तद भी चलिया जाएगा। परंतु अगर मैं ये हर स्थिति वाली केस है तो हर स्थिति में जो होएगा उसनों तुसीं ऐड कर देना है। जदों भी तुहानूं पूछा जाए कि हर स्थिति दे विच 2-2 बच रहा तो ऐड कर दो, इट मीनस है कि 99962 होगा, ये साडा आंसर होएगा। हुण तुसीं उपर मैच कर सकते हो दोस्तों, उपर मैच कर सकते हो इन्हां आंसरस दे विच। ये तुहाडा मैथमैटिकल ऑपरेशन होएगा। मैं इदां ही तुहानूं हर सवाल दे 2-2 3-3 मैथड दसो। हुण तुहानूं किहड़े वाला मैथड अच्छा लगता है? जो मैं तुहानूं देसी दवाइयां दे रहा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इन्हां नूं सही तरीके नाल समझ के और सवेरे शाम तुसीं दवाई लैनी है, तुहानूं डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आराम आएगा। चलो जी, इस तो बाद सिलसिला शुरू करते हैं कुछ होर तरीके के क्वेश्चनस का। एलसीएम दे विच दूजे तरीके के क्वेश्चनस तुहानूं एग्जाम दे विच इस तरीके नाल पूछे जाणगे कि जिस तरीके नाल तुहानूं जे तां उन्होंने कि लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर दसो जो कि डिविजिबल होवे 21 36 ते 66 तो तुसीं उन्हां दा एलसीएम कर लो, तुहाडे कोले आंसर हो जाएगा। एक तुहानूं क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरीके का पूछा जाएगा कि द लीस्ट, नोट कर लो सारे बच्चे, द लीस्ट नंबर which when divided by 4, 5 and 6 leaves remainder 1, 2 and 3 respectively, ठीक है। इज ऑप्शन नंबर पहला 57, ऑप्शन नंबर 2 61, ऑप्शन नंबर 3 will be what type we have a 59 and option number 4th will be 63। ये सानू की है इदां दे ऑप्शन दिते हुए ने। देखो आपां सवाल करना है, सवाल दे विच 2 ट्विस्ट है, बोल के समझा देना है। ये कहंदा लीस्ट तो लीस्ट नंबर किहड़ा होएगा अगर आपां उसनूं 4 नाल या 5 नाल या 6 नाल भाग करिए तो 4 नाल भाग करांगे तो साडे कोल 1 रिमाइंडर बचे, 5 नाल करांगे तो 2 रिमाइंडर बचे, 6 नाल करांगे तो 3 रिमाइंडर बचे। दसो वो नंबर किहड़ा होएगा? तरीका नंबर पहला, या तो सवाल दे विच दिते गए ऑप्शन चुक लो, 57 ते 4 का भाग करदे तो 1 बच गया, क्योंकि 14 चौकी 56 ने तो 1 बच गया। 5 का करांगे तो कितना हो जाएगा 11 5 55, तुहाडे कोल 2 बच गए। 6 का करेंगे तो 6 9 6 54 तो तुहाडे कोल 3 बच गए, 57 तुहाडा आंसर आ गया, बिल्कुल करैक्ट है। तुसीं चूज कर सकते हो, नो डाउट है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी बच्चे को कोई परेशानी आएगी नहीं, मेरी गारंटी है। मैं 100% तुहानूं जो गल कहती वो रिजल्ट आएगा। हुण कारण इत्थे की है कि कारण ये बहुते सारे बच्चे इन्हां चीज़ां नूं लैके ग्रामेटिकली गल करिए या मैथमैटिकली बहुत सारे चलते हैं। तो मैथमैटिकल इज द बेस्ट भी की हो सकता है कि जदों भी सानूं इस तरीके के क्वेश्चनस पूछे जाते हैं। देखो मैथमैटिकल ऑपरेशन ये गल कहता है कि गैप ऑफ द नंबर ऑलवेज विल बी सेम, जिमें 4 है 5 है तो 6, ਇਹਦਾ रिमाइंडर 1 है, ਇਹਦਾ रिमाइंडर 2 है और ਇਹਦਾ रिमाइंडर 3 है।
gap of the number will be always same of this type of the question. You can say that कि here is 3 3 3 the difference है. First of all what we can say कि 5 and 6 find the LCM. कितना हो जाएगा 6 ਨੂੰ ਆਪਾਂ LCM ਮੰਨਾਂਗੇ 6 ਤੇ 5 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੈਗੇ 2 ਹੈ ਨਹੀਂ 5 ਦੂਣੀ 10 ਤੇ 60 ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਪ ਆਫ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਆਵੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗੈਪ ਆਫ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 60 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਸੇ 60 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਈਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ ਹਰ ਈਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਈਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਈਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਈਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਈਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਪ ਆਫ ਨੰਬਰ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 57 ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਲਕਿ ਥਿਓਰੀਕਲ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है सारे समझ पा रहे हो ना चलो जी इस तो बाद नेक्स्ट देख लेने ਆਪਾਂ नेक्स्ट ਆਪਾਂ क्वेश्चन ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਰਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ क्वेश्चन ਸਾਨੂੰ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਲਓਗੇ आई होप यू ऑल पीपल कैन डू इट वेरी वेल चलिए भाई चलिए शाबाश अगर ईच कंडीशन अपने को जिमें कि 4 है 8 है 6 है 9 है हर स्थिति ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 13 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਚਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਬਚਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਬਚਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 6 ਬਚਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 4 ਬਚਦਾ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 7 ਬਚਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਚਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਗੈਪ 2 ਦਾ ਬਚੇਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਬਚੇਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਬਚੇਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਐਲਸੀਐਮ ਆਪਾਂ 9 ਨੂੰ ਐਲਸੀਐਮ ਮੰਨਿਆ 9 ਤੇ 4 ਦਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ 4 ਠੋਕੋ 8 ਦੀ ਗੱਲ 8 ਚ 2 ਰਹਿ ਗਏ 2 ਠੋਕੋ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰਹਿ ਗਏ 3 ਠੋਕੋ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਦੂਣੀ 6 9 6 54 54 into 4 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 54 into 4 ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਤੇ 5 का 20 ਤੇ 1 ਹੋ ਗਿਆ 21 216 216 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ तो माइनस कर देंगे गैप ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 214 ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਡਨ ਹੈ 100% ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਹਲਵਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਲਸੀਐਮ ਐਚਸੀਐਫ ਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਆਏਗਾ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ ਜਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਦਾ ਲੀਸਟ ਨੰਬਰ which when divided by 4 6 8 9 and leaves 0 respectively remainder in each case and when divided by 13 leaves 7 remainder देखो जी गुरु जी पहला ऑप्शन अपने कोले है 144 दूसरा ऑप्शन अपने कोले की है 72 तीजा ऑप्शन अपने कोले की है 36 ते चौथा ऑप्शन अपने कोले 85 देखो सवाल का मतलब की है सवाल कह रहा है कि अगर आप 4 6 8 ਤੇ 9 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 0 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਓ ਇਨ ਈਚ ਕੇਸ ਐਂਡ ਵੈਨ ਦਾ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 13 ਤੋਂ 7 ਬਚਦਾ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਰੋਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 13 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਲਓ 7 ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 13 7 91 13 8 104 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 13 1 13 ਬਚ ਗਿਆ 1 4 ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਚੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਆਫ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲੀਗਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 13 5 65 ਹੈ 65 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ 7 65 ਤੇ 7 72 ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਬਣ ਰਹੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ 13 ਦੂਣਾ 26 ਹੈ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ 13 6 78 ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 7 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
बट उसने लीस्ट नंबर की गल की तो लीस्ट अपने को नंबर आ जाएगा, बिल्कुल क्लीयर है। हुण आप एक इदां करते हैं कि जो मैथमैटिकल ऑपरेशन उसके मुताबिक अगर आप कंसैप्ट करिए तो साढ़े को कितना है, थोड़े को आ जाएगा 4 6 8 ते 9। बई एलसीएम करांगे 9 दे विच अपने को 4 नहीं होंदे हैं तो लगभग आप कर चुके हैं एलसीएम उपर 4 6 8 9 का उपर लिख चुके हैं ना, 4 6 8 9 216 आएगा, 216 आएगा गुरु जी। 216 अगर अपने को आ गया है, एलसीएम कर रहे हैं ना आप, ओके एलसीएम कर रहे हैं तो एलसीएम आप इदा कर लें 9 दे विच अगर आप 4 दे फैक्टर बनावांगे 2 × 2 कर लो तो 2 कर लो, 9 दूनी 18 ते 36 करांगे, 18 दूना 36, 36 ते 6 का जाएगा, 4 का जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक है जी, 72 कर लो तुसीं, 72 कर लो। 72 ते अगर आप करांगे 72 ते सब का डिविजिबल जाएगा, सब का डिविजिबल जाएगा 72 ते। हुण 72 नूं आपां किद्दां समझना है भी 72 नूं समझना है, वो कहंदा भी सवाल यह है कि इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4 6 8 है, लिव्स रिमाइंडर 7 है। अगर आपां इस नूं की करांगे 13 ते भाग करांगे 72 नूं तो दोस्तों 13 के उपर भाग करांगे तो अपने को 7 रिमाइंडर बचेगा। सो दैट अपना 72 वाला आंसर एकदम राइट है। उम्मीद है अज का सैशन थोड़ा ठीक लग्या होएगा। तो बाकी के क्वेश्चन आप करांगे कल। अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, सतर्क रहो। टेक केयर, बाय बाय।